الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 19واں پارہ مکمل سماعت فرمایا بذریعہ تراویح۔ اس پارے کے اندر سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل، یہ تین صورتیں اس پارے کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت کی آیت نمبر 23 میں روز قیامت مشرکین کے اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ مشرک ہیں ان لوگوں کے اعمال کا کیا ہوگا اس کے اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ روز قیامت مشرک و کفار سارے اعمال، یعنی مشرکین اور کفار کے سارے اعمال کو ذرہ بنا کر کے بکھیر دیں گے۔ تو آیت کے اندر حباءً ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا بھی چاہے تو اسے نہیں پکڑ سکتا، اس کے لیے ناممکن ہے۔ یعنی کفار و مشرکین کے جو اعمال ہیں، جو بھی خیر کے اعمال، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر سے بے شمار کافر اور مشرک ہیں جو بھی خیر کے کام کرتے ہیں، ہاں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں، وہ بھی بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مرنے سے قبل شرک سے، کفر سے توبہ نہیں کریں گے اور مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے تو ایسے لوگوں کے اعمال کو میں ذرے کے مانند اڑا دوں گا۔ اور اس کی مثال کیسی دی گئی ہے کہ مثال کے طور پر دیکھا گیا کہ سورج کی کرنیں جب گھروں کے اندر پڑتی ہیں باریک سوراخ کے ذریعے سے، تو ان کرنوں میں سے جو چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے ہیں ان کے مانند اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو ضائع کرے گا، ان کے اعمال کو برباد کرے گا یا ان کے اعمال کو مٹا دے گا۔ اگر کوئی شخص ان ذرات کو پکڑنے کی بھی کوشش کرے گا تو اس کے لیے ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کافر و مشرکین کے جو بھی اعمال ہیں انہیں کل قیامت کے دن ذرہ بنا کر کے بکھیر دیں گے۔ ہاں، البتہ ہمیں دنیا کے اندر وہ جس نیت سے، جس غرض سے وہ کام کیے رہتے ہیں اس کا انہیں میں ضرور ان کا بدلہ دیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دنیا کے اندر اپنے مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے کفار و مشرکین میں سے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے اندر ان کا کوئی وہاں پر مقام مرتبہ نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ روز قیامت کافروں کا پچھتاؤ، کہتے ہیں کہ آیت نمبر 27 اور 28 میں کافروں کا افسوس کا تذکرہ کیا گیا کہ قیامت کی ہولناکیاں اور تکلیف اور اہل ایمان کی کامیابی کو دیکھ کر کافر افسوس کرے گا اور مارے انگلیاں اپنے مسلسل میں کہے گا کہ اے کاش کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، رسولوں پر ایمان لاتے، اے کاش کہ ہم فلاں کو اپنا معبود نہ بنا لیتے۔ ذکر کر کے آ جانے کے بعد میں گمراہ ہو گیا۔ شیاطین انسان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، شیطان انسان کو، یعنی کفار و مشرکین کل قیامت کے دن لوگ نیک لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے اے کاش کہ میں بھی ان کی طرح ایک اللہ کی عبادت کیا ہوتا، میں بھی اس وقت جو رسول آئے تھے، جو کتابیں آئی تھی ان پر ایمان لایا ہوتا، تو کاش کہ آج مجھے میرے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینے کے بجائے بائیں ہاتھ میں نہ ملتے۔ تو اس دن افسوس کرے گا اور اس دن پچھتائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر روز قیامت اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت، آیت نمبر 30 میں بتایا گیا کہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے، اللہ سے شکایت کریں گے، اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا۔ یعنی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے تو کہتے تو یہ تو پچھلے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، ہاں، یہ تو ان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، یہ خود بناتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کو پیش کرنے کے وقت جو مذاق اڑائے، اور آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے، ہاں، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کی شکایت کریں گے جو قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح کے نام سے اتنی تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں اور اتنا فاش قرآن پڑھتے ہیں
کہ मुक्तदियों को समझ में भी नहीं आता कि वो तरावी में क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि ख़त्म कुरान के मामले में, ये कुरान को जल्दी ख़त्म करने के मामले में हमारे बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कुरान को इतनी तेज़ी से पढ़ते हैं, पीछे वालों को समझ में नहीं आता कि वो क्या लफ्ज़ पढ़ रहे हैं। तो ये भी कुरान के साथ मजाक है, कुरान की बेहुरमती है। जो लोग खास करके कुरान को जल्दी जल्द खत्म करके कोशिश करते हैं, जिन्हें ना समझते हैं, ना उसमें सही मानों में पढ़ते हैं, ना सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी कल क़यामत के दिन उनके लिए ये पढ़ना उनके लिए वबाल जान बन जाता है। तो मोहतरम सामीन किराम, कुरान को बड़े ही अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े सुकून के साथ पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। गरचे वक्त को थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा ही पढ़ना चाहिए, मुकर्रर वक्त में क्यों ना हो, उसको हमेशा और मुदावमत के साथ, तरतीब के साथ और आहिस्ता पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को भी समझ में आए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और सुनने वालों को भी समझ में आए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो मोहतरम सामीन इकराम, ऐसे लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे तो उनका हाल क्या होगा, वो खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस पारे के अंदर नफ्स के पैरोकारों की मजम्मत बयान की गई है। जो लोग अपने नफ्स को माबूद बना करके बैठे हैं कि उसका नफ्स जिसे पसंद किया उसको अमल करता है और जिसे पसंद ना किया उसको छोड़ देता है। मिसाल के तौर पर आज हमारे बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनके पास सब कुछ मैसर है, लेकिन उनका दिल मुतमईन नहीं होता कि वो रोजा रखे, इसलिए रोजा छोड़ देते हैं। उनका दिल मुतमईन नहीं होता कि वो तरावी की नमाज पढ़े, इसलिए तरावी छोड़ देते हैं। यानी नफ्स की इत्तिबा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करने में तकलीफ पेश आती है और उनका नफ्स चाहता है कि इस तकलीफ को बर्दाश्त ना करे, बल्कि आराम और राहत के साथ रहे। तो ऐसे लोगों के लिए उनकी पैरोकारों की मजम्मत बयान की गई है। और यही लोग, जिसका हर नफ्स की ख्वाहिश और इत्मीनान के लिए अपने नफ्स को होता है, तो कल क़यामत के दिन वो शख्स भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और वो अफसोस करेगा। और इसी के साथ साथ इस पारे के अंदर, इस सूरत के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान की गई है और बेशुमार बातें इस पारे के अंदर की गई है। और इसी के साथ साथ इस पारे के अंदर जो दूसरा सूरा है, सूरत शुअरा, तो सूरत शुअरा का आगाज होता है। ये सूरत मक्की है और इसके अंदर 227 आयतें हैं और शुअरा शायर की जमा है। इस सूरत में शायरों की बुराई बयान की गई है। ये जो शायर लोग होते हैं, हाँ, जो इस्लामी शायर की बहुत सारे सहाबा किराम में से इस्लामी शेर पेश कर रहे थे, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए या दुनिया की रंगनियों को बताने के लिए या किसी औरतों के लिए जो शेर पेश की जाती है या वक्त ज़ाय किया जाता है शेर और शेर में, ऐसे लोगों की बुराई इस पारे के अंदर बयान की गई है, इस सूरत के अंदर बयान की गई है। और इसी के साथ साथ इस पारे के अंदर सूरत नमल, यानी चोटी जिसे हम कहते हैं, नमल अरबी जबान में चोटी कहते हैं। और इस लंबा तफसील वाक़या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इस सूरत के अंदर किया कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर के निकल रहे थे, जिस वादी से वो गुजरे वहां पर चोटियों की जमात थी। तो चोटियों की जमात में से एक चोटी ने कहा कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, अपने अपने बिलों में चले जाओ। तो यहाँ जब वो चोटी अपने सारे जमात वालों को कहा कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है तो अपने अपने बिलों में चले जाओ, वरना तुम्हें वो रौंद डालेंगे। तो वो बात अल्लाह ताला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनाई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज्जुब किए कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी नेमत दी कि मैं चरिंद परिंद की बातों को समझ सकता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी देन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। वो हवा को हुक्म देते थे, चरिंद परिंदों से बातचीत करते थे। और इसी के साथ मशहूर है, हुदहुद एक परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में था। तो वो एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का मुआयना करते हुए हुदहुद परिंदे को गायब पाया। तो कहा कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? अगर वो एक वाज़ेह दलील लेकर के नहीं आएगा, कोई मजबूत बात पेश करके नहीं मेरे पास पेश करेगा, तो मैं उसे ज़बाह कर दूंगा। तो इसी इस्लाम में हुदहुद परिंदा आता और कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के हमारे शहर के दूर सबा शहर में वहां एक मलिका नाम की एक बिल्किस मलिका रहती है जो आग की परस्तिश करती है। शैतान उन्हें धोखे में डाल दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी खबर को उसकी जब खबर मालूम हुई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके लिए एक खत इरसाल करते हैं, कहते हैं कि एक अल्लाह की बात की तरफ करो, यार हमसे जंग लगाओ। तो वो मलिका अपने सारे मुशवरा करती है, अपने सरदारों, अपने उस वक्त के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, कमांडर से शरारत करते हैं कि नहीं हम उनसे जंग करेंगे। लेकिन वो मलिका कहते हैं कि नहीं, बादशाह से जंग करना गोया कि हमारे लिए खराबी है। तो इसीलिए
मलिका बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम के बहुत सारे तोहफे पेश करती है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम उन तोहफों को वापस कर देती है और कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं और मेरा पैगाम मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं। फिर उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे बुलाते हैं और दावत दीन देते हैं, और सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने फौज में से कि कौन है जो उस मलिका का तख्त यहाँ मेरे पास ला करके दिखाए, जो पलक झपकने से पहले। तो उसमें से एक जिन कहता है कि मैं आपके पलक झपकने से पहले उसका तख्त आपके कदमों में तरह लाकर रख दूंगा। फिर उसका तख्त लाया गया, फिर उस हजरत सुलेमान सल्लल्लाहु उसके अंदर रद्द-बदल किया गया। मलिका बिल्किस जब आई और देखा कि मेरा ही तख्त और मेरे शहर से और मेरे मुल्क से मेरे आने से कबल यहाँ पर पहुंचा, वो ये निशानी देख करके सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मलिका बिल्किस इस्लाम कबूल करती है। ये सारा तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल नमल में इसका तस्करा किया। तो मोहतरम सामने किराम, बातें तो बेशुमार हैं, वक्त इजाजत नहीं देता, तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सही मानों में मुझे और आपको कुरान मजीद को समझकर, उसके तफसीर को पढ़कर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम के रोज़ों को, तरावियों को, जुमला इबादतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।